Hey guys, welcome to the Stylish Squad. We are back with one of those unique episodes where we have somebody with us who's represented our country in the field of sports and entertainment. His journey is inspiring, his struggles are what define him, and his commitment and determination are worth idolizing. We are delighted to present to you the face of Indian field hockey who has won numerous laurels. To name a few, he's played the World Cup in 2014 in the Netherlands. He was the member of the Indian team who won the 2011 Asian Champions Trophy. He's the only Indian player to play in the German Hockey League, and also he's the first hockey player to have participated in the very famous Indian TV show Fear Factor Khatron Ke Khiladi. We are proud to present to you the very inspiring journey of Yuvraj Valmiki. Thank you so much, Yuvraj. It's a privilege to have you with the Stylish Squad. In a country where cricket is a religion and every child grows up playing cricket, you at a very tender age not only started to play the sport but also went ahead and represented India. Talk to us about your childhood, who inspired you, and how did it all start? So in the year 1999, it's a very ironic story, to start playing hockey was my classmate Boone D'Souza. So he was the first person who introduced me to hockey, but it's a very different story, The reason I wanted to play hockey was to see my picture in the newspaper. So I was a tiny puny boy, 6th standard में थे, 10 साल के थे, और हमारे स्कूल में एक annual day था, और वो there was this very song, very famous song trending called I'm a Barbie girl in my Barbie world. So actually हम वो गाने पे परफॉर्म करने वाले थे, एंड बून के डैड हॉकी ग्राउंड में डॉक्टर थे, वहीं पे वहाँ पर से ही वो बड़ा हुआ पला बड़ा एंड देन उसका एक पेपर हुआ करता था उस टाइम, फ्री प्रेस जर्नल, तो उसका एक पासपोर्ट साइज छोटा फोटो आया था, and he said he comes up to me and he said UV, my picture has come in the newspaper, and I was like so awestruck seeing that picture. I was like, even I want to see my picture in the newspaper. So I guess the only reason to play hockey was to see my paper, my picture in the newspaper. That was the only reason. And of course, when you talk about childhood, it wasn't that easy as people think, because it took me a lot of effort, a lot of sacrifices, as many of them knows that there was a time in our house that we didn't even had electricity, no water connection, not even a toilet, staying at such a prime area called Marine Drive in Mumbai. So things were very difficult to cope up with everything, but my parents always made sure that हमको they always preferred quality rather than quantity. So हमको बहुत सारे ऐसे टाइम हुआ करता था that we had to skip meals and everything, but then हम लोग को वही बिलीव था कि मॉम डैड का कि हमारे बच्चों को, हम लोग 4 भाई थे, कि हम चारों भाइयों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाए और अच्छी एजुकेशन मिली जाए. सो आई गेस एंड इनिशियली होता था कि जब हम लोग हॉकी स्टार्ट किए थे तो उसको क्लासेस बंक करने मिलते थे, सोचते थे कि छोड़ो 45 मिनट्स फ्री मिल जाएगा. So initially it was only for fun and for bunking classes, but then eventually slowly, gradually, I will say hockey became a passion, and today I will say hockey is like a bread butter. Hockey is everything. Hockey की वजह से ही युवराज है. And when you talk about playing for India, of course जब आप start करते हो तो आपको slowly आपको पता चलता है कि you're progressing. Things were going good for me. I was really working hard. I was scoring a lot of goals I used to play as a striker, and फैमिली को भी बहुत अच्छा लगने लगा कि मेरा बच्चा आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा. सो ऑब्वियसली वो एक ख्वाब था, वो एक सपना था कि आगे जाके कुछ भी हो जाए, अपने देश को रिप्रेजेंट करना है और वो तिरंगा अपने छाती पे लगाना है. आई थिंक दैट वाज द ओनली मोटो कि वो हमारे इंडिया को लिए लॉरल्स लेके आना. आई थिंक दैट वाज द ओनली रीज़न टू प्ले हॉकी, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू प्ले फॉर इंडिया एंड टू सी माई पिक्चर इन द न्यूज़पेपर.
Well, it all started off with you wanting to see your picture in the newspaper, but today you're in the hearts of billions of people in the country and across the world as well. We know that you faced a lot of challenges, but you still kept going. Who were some of those mentors who really helped you whenever you felt like giving up? I guess for me, failure is the first step to success. And whenever I failed, whenever I didn't get selected for any team or इंडिया और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, और कभी भी बहुत सारी टाइम ऐसा था कि घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, बट आई थिंक दैट वन थिंग केप्ट मी गोइंग वाज एज आई सेड कि आई वांटेड टू वेयर दैट ब्लू इंडिया जर्सी. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंटली कि जो जैसे मैंने कहा था कि हम लोग की जो फैमिली का जो बैकग्राउंड था बहुत ख़राब था. मतलब हम लोग को जैसे एक एक टाइम का खाना नहीं मिलता, तो हम लोग बहुत गरीब परिस्थिति से हम लोग ऊपर आए. बट वो मुझे वो चेन था ना, वो गरीबी का चेन तोड़ना था. आई नेवर, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने हमारे मॉम डैड ने जितना स्ट्रगल देखा था, मैं हमेशा उनको बचपन से बोलता था, चाहे वो मस्ती मजाक में बोलता था या बहुत सीरियसली भी बोलता था कि आई वॉन्ट टू चेंज दैट. एंड कि आप लोगों ने जितना हमारे लिए कष्ट उठाया, कितना भी मुश्किलें देखी हैं आपने, द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज द बेस्ट ऑफ बेस्ट लग्जरी लाइफ. तो आई थिंक वो एक मोटो था लाइफ का कि वो जो गरीबी, मुझे जैसे हमने इतना गरीबी देखी थी, मैं नहीं चाहता था कि फ्यूचर में मेरे बच्चे या कोई ऐसे हमारे ऐसे हार्ड वर्किंग लड़के लोग को कभी ऐसे देखने मिले. सो आई थिंक वो चेन मुझे बहुत ब्रेक करने का बहुत पहले से ही जहन में था कि कुछ भी हो जाए, मेरे को एक दिन बड़ा आदमी बनना है, पैसे कमाने हैं, सब कुछ करना है. और जो गरीबी से मेरे को, जैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते कि 40 साल हमारे घर पे ना कर्टन था, मतलब दरवाज़ा भी नहीं था, और हम लोग एक छोटे 10 बाय 10 के स्क्वायर फीट में घर पे रहते थे. सो मैं चाहता था कि हम लोग एक प्रॉपर छत में आ जाए, एक अच्छा घर हो जाए, बड़ा घर हो जाए. तो मैं उस तरीके से मेहनत करता था. और ऐसा बहुत टाइम था कि लगा भी कि हॉकी, बिकॉज इट इज़ वेरी अंडररेटेड और इतना हाइप नहीं किया जाता ये स्पोर्ट्स को हमारे कंट्री में, बिकॉज इट्स फॉर with due respect to cricket, but it's a cricket driven country where people prefer cricket over any sport for that matter. बट वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना, वो प्राउड फील करना, आई थिंक वो सबसे बड़ा एक टास्क था. और 13 टाइम्स जूनियर इंडिया कैंप में मेरा जब सिलेक्शन था, मैं ड्रॉप हुआ, मैं कभी सिलेक्ट नहीं हुआ, कभी नहीं. तो एंड एक टाइम ऐसा लगा यार, मतलब अब तो गिव अप करना है. बट लाइक माई मेंटर्स, मिस्टर मजबान पटेल, हु इज़ लाइक माई फर्स्ट कोच, then my parents, Dhanraj Pillai, the living legend whom I treat as my mentor, my idol, my family and everything, वो लोग मुझ पर बहुत भरोसा करते थे. वो कहते थे नहीं युवराज, यू विल मेक इट बिग वन डे. सो मुझे फिर ऐसा लगता था कि मैं बैठ के सोचता था कि यार अगर वो मेरे पे इतना भरोसा कर सकते हैं, सो आई फील मे बी अपने आप पे भरोसा करना चाहिए. इसलिए मैंने ना वो टैटू मेरे हाथ पे है कि मैं हमेशा मानता हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ. वंस यू बिलीव इन योर सेल्फ यू ऑलरेडी हाफ वे देयर. तो अपने आप में वो विश्वास रखना कि आप कर सकते हो, आई थिंक दैट केप्ट मी गोइंग. और मैं हमेशा सब यंगस्टर्स को यही कहता हूँ कि आप 10 बार गिरो, 15 बार गिरो, बट 16वां बार आप उठ के खड़े होना चाहिए. यू हैव टू फाइट, बिकॉज जो चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है ना, यू डोंट वैल्यू इट. सो प्रॉब्ली दैट्स वन ऑफ द रीज़न आई वैल्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, बिकॉज आई हैव सीन एवरीथिंग. बहुत सारी चीज़ें देर से मिली है और मैंने बहुत सारी मेहनत की है वो चीज़ों के लिए, शायद इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा कदर है ये सब चीज़ के लिए. No doubt hard work always pays off, and you're a live example of that. And believing in yourself is definitely going to be the key to success. Now, in the similar context, what is that advice you would want to give to the youth of our country who are also budding sportsmen? So my only advice to the current generation would be, just keep grinding, keep working hard, because मुझे भी पता है कि I am like the live example. इतने sacrifices, इतने struggles थे लाइफ में, बट वो एक ही चीज़ था कि यार मुझे बस मेहनत करना है, कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट एवर सेड एंड डन, आई हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, आई हैव टू वेयर दैट इंडिया जर्सी. तो एक जो एक एम था, एक टारगेट था लाइफ में कि वो मतलब पहुंचना है आपको, कितने बार भी कुछ भी हो जाए. और इसलिए मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये कहता हूँ कि आज के जनरेशन के हिसाब से वी शुड हैव स्पोर्ट्स एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज इन ऑल द स्कूल्स, बिकॉज हम लोग पीटी करते हैं, विच इज़ लाइक आई फील इट्स नॉट इवन 1% जो आपको कभी आगे लाइफ में काम आएगा. So rather than PT have a sports as a compulsory language, so he or she has to take up a sports. ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का लड़की जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो स्पोर्ट्स मैन होता है या स्पोर्ट्स वुमन होती है, उनका जो माइंड है ना एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा चलता है. और अगर वो लड़का या लड़की अगर इंडिया के लिए रिप्रेजेंट भी नहीं करते अपने नेशन के लिए, बट बाकी की ज़िंदगी दे कैन लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ, जिसमें आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप पंक्चुअल रहेंगे, आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करोगे, यू लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज कीप टेलिंग देम,
ऑलवेज मेक श्योर दैट यू प्ले स्पोर्ट. कुछ भी हो जाए, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, just to keep yourself active. I think that's the most important part. और रही बात when you start playing sport, always remember, ये अपने दोनों कान है ना खुले रखो, अपने सीनियर्स का सुनो, अपने कोचेस का रिस्पेक्ट करो. आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप रिस्पेक्ट करो अपने कोचेस का, अपने सीनियर्स का. और मैं आज मतलब जहाँ पर भी मैंने कितने भी 90 मैचेस अपने इंडिया के लिए खेले, बट आज भी मैं अपने हॉकी ग्राउंड में जाके जूनियर्स को पूछता हूँ कि व्हाट कैन आई इम्प्रूव, मैं तुमसे क्या सीख सकता हूँ. तो मैं देयर इज अ सेइंग दैट अ ह्यूमन इज़ ऑलवेज अ लर्नर अंटिल ही डाई. सो आई थिंक एवरी डे आप कुछ नया सीख सकते हो. जैसे मैं अपने यंगस्टर से भी कितनी चीज़ें सीखता हूँ व्हेन इट कम्स टू हॉकी टेक्निकल पार्ट्स. सो आप जितना लोगों से सीख सको सीखो, जूनियर्स से सीखो, सीनियर्स को रिस्पेक्ट करो, सीनियर्स की सुनो, कोचेस को रिस्पेक्ट करो, एंड बी डिसिप्लिन. एंड वो जो पैशन है ना वो ज़िंदा रखना. आई थिंक वो जो पैशन जिस दिन ज़िंदा रहेगा ना, जब तक आप कुछ भी दुनिया में हासिल कर सकते हो. वो ज़िद होना चाहिए कि मुझे करना है तो करना है. आई थिंक दैट्स द ओनली एडवाइस आई विल गिव टू ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर. Well, yeah, as they say, feedback is what champions have for breakfast. और लर्निंग कहीं से भी आ सकता है, आपके जूनियर्स से, आपके सीनियर्स से, लेकिन सीखते रहना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Well, Yuvraj, also talk to us about a sport like hockey, जहाँ पे आप 60-70 मिनट्स आप स्पोर्ट खेल रहे हो, जो गेम खेल रहे हो, उसके पहले आपके वार्म अप ड्रिल्स, आपके प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं, तो फिजिकल कंडीशनिंग इज़ ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंस. But what about mental conditioning? Can you share some of those things that you do as part of your mental conditioning? Okay, so I feel hockey is the most technically very, very, very difficult game. It is so hard for a neutral person to even understand the game, the rules, and even to, it takes like a month. I think more than a month to even hold a hockey stick. Like the technically कैसे आपको grip पकड़ना है. So it's a very difficult sport, I feel. And when you talk about injuries, I think I am being known as the injured princess of Indian hockey कि मुझे इतनी injuries हुई हैं. And मुझे अभी भी still date I will say मेरे अभी तक 36 MRIs हुए हैं, almost 60-70 plus stitches लगे हैं पूरे बॉडी में, इतनी सर्जरीज हुई हैं. तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेंटल स्ट्रेंथ. और वो मेंटल स्ट्रेंथ तब आती है जब आपको फेलियर्स दिखते हैं आपके लाइफ में और आप गिरते हो. मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने बहुत बार गिरा हूँ लाइफ में, बट वो मैं अपने आप को आपको मैं यंगस्टर्स हो गए या किसी को भी इंसान को आप मोटिवेट कर सकते हो, बट करना या नहीं करना वो उनके ऊपर है. सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग तो बोल सकते हैं आपको, बट करना है एट द एंड इट्स ऑल अबाउट यू. तो मैं हमेशा लोगों का सुनता हूँ, बट मुझे पता है कि मुझे करना है. कि लोग आपको कितनी भी एडवाइस दे देंगे, आपको कितना भी स्ट्रांग रहने बोलेंगे, बट एट द एंड यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू स्टेप ऑन टू दैट फील्ड. यू हैव द वन हु इज़ गोइंग टू परफॉर्म ऑन द फील्ड. सो मैं अपने आप को ही बहुत मोटिवेट करता हूँ. मैं हकीकत बता रहा हूँ विद ऑल मॉडेस्टी एंड ऑनेस्टी. मैं अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा पुश करता हूँ. एंड मैं हमेशा अपने आप का जो लिमिट है ना उससे भी ज़्यादा, आई डोंट वांट टू बी इन अ कंफर्ट जोन. चाहे वो ट्रेनिंग सेशन हो या मैच हो, मेरे को वो जो हंगर है ना सीखने का, ज़िद का, और टू डू बेटर. मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा कॉम्पिटिटर मैं खुद ही हूँ. मैं किसी से कॉम्पीट नहीं करता. मैंने आज तक कभी ये सब जहन में रखा नहीं है, ना कभी माइंड में रखा है कि मुझे उसको बीट करना है, आई वांट टू स्कोर मोर गोल्स देन हिम. मैं अपने आप से बेहतर करता हूँ. मैं अपने आप को अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ. सो शायद दैट्स वन ऑफ द रीज़न दैट पुशेस मी टू वर्क मोर हार्डर एवरी डे. एंड obviously hockey is a mental sport. Mentally you have to be very, very strong. I feel all the sports for that matter, it requires a lot of physical and mental strength. And of course hockey 60 minutes का हो गया, अभी पहले 70 minutes का था. And you have to run like a mad dog. So you imagine, and spur of seconds you have to take decisions कि आपको कहाँ जाना है. और आप जब probably hockey एक मैच जब लाइव स्टेडियम में देखोगे, आपकी सिर्फ नज़र ऐसे ऐसे होगी क्योंकि बॉल कभी इधर है, कभी उधर है, कभी इधर है, कभी उधर है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो आई थिंक दैट कीप्स अस गोइंग. इतना हम लोग मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं. जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे यार ये प्रॉब्लम्स आ गई घर पे, अरे ये थोड़ा तो हम लोग बोलते हैं यार छोड़ो, लाइफ में इतना सब देखा है, इतनी मुसीबत देखी है, तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम हम काउंट भी नहीं करते. सो आई थिंक ये हॉकी इज़ द मोस्ट टेक्निकली मोस्ट डिफिकल्ट गेम, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ. एंड आप अगर एक बार हॉकी खेलोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. दैट्स व्हाट आई फील. Well, the kind of injuries that you spoke to us about, कोई भी और होता तो वो आसानी से गिव अप कर देता, बट आप एक जुनून के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते चले गए. आई एम श्योर
कहीं ना कहीं इसका जो क्रेडिट है वो जाता है आपकी इंडियन जर्सी जिसके लिए आप खेलते हो, एंड यू आर सो प्राउड ऑफ वेयरिंग दैट इंडियन जर्सी. So Yuvraj, tell us about how does it feel to wear that Indian jersey and to represent a country of 1.3 billion people? Do you feel nervous? या जब आप फील्ड पे हो, नेशनल एंथम चल रहा है और आपको मालूम है पूरे दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, आपकी मैच को देख रहे हैं, and India's name is at stake, how does that feel? Oh, that's a tough one. I will say in my words, वो तिरंगा पहनना ही एक मतलब वो एक फीलिंग है कि आप कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते. दुनिया के लोग कितने भी आके अगर पूछें व्हाट इज़ दैट फीलिंग, आई फील वो फीलिंग ही नहीं बता पाएंगे हम लोग कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना. वो बिफोर द गेम वो नेशनल एंथम पे खड़ा होना, जब मैं बात करता हूँ तो आई गेट गूज़बम्प कि वो वहाँ पर इतना द क्राउड इज चैंटिंग इंडिया एंड दे आर सिंगिंग अलॉन्ग द होल नेशनल एंथम. And of course you feel very proud, you feel very honored, you feel all the privilege in the world with all gratitude. मुझे 99 में जब हॉकी स्टार्ट किया था and it took me till 2010 was the first time which I played for India, so it was almost like a 10 to 11 years of hard work. So the first time when I wore that India jersey I was like, ऐसा देखा मैंने बोला 10 साल लग गए इसको पहनने के लिए. सो आई थिंक वो जर्नी में इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एवरी पर्सन वॉचिंग आउट दिस वीडियो, टू ऑल द व्यूअर्स हु अपकमिंग हॉकी प्लेयर्स और एनी स्पोर्ट्स पीपल कि more than the destination, just enjoy the journey, and your journey should actually consist of your hard work, your passion, your determination, your dedication, your punctuality, your leadership qualities, sacrifices. So I feel it's a very 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 big honor to represent our country, which is such a big thing. And the best part, obviously I motivate myself whenever I'm the hockey pitch before playing for India. हर मैच के पहले मैं हमेशा पहले अच्छे अच्छे गाने सुनता था, अपने आप को मोटिवेट करता था. और मैं हमेशा एक चीज़ मतलब कि मैं जब फील्ड पे जाता था, मैं जब हम लोग नेशनल एंथम होता तो आई यूज्ड टू बी लाइक सी वो फ्लैग को आई शुड एक्चुअली इट साउंड्स लाइक अ मूवी, बट देन ये ऑनेस्ट आंसर है कि वो फ्लैग को देख के हम सोचते थे कि बैक होम पूरी इंडिया हमको देख रही है, आज हमको देश के लिए कुछ करना है. और जो अपॉर्चुनिटी मिली है अपने कंट्री के लिए, सो करीबन 90 मैचेस अपने इंडिया के लिए मैंने खेले हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप एंड ऑल द मेजर टूर्नामेंट्स. सो मैं अपने आप को बहुत लकी साबित करता हूँ. एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क तो था ही अपनी जगह, बहुत सारा हार्ड वर्क था. तो आई थिंक वो जो इंडिया कलर रिप्रेजेंट करना, वो इंडिया ही एक शब्द है ना कि मतलब आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो. आप जब मैच खेलते हो तो आप तो फील्ड पे रहते हो, बट आपको ये नहीं पता होता है कि आपके कितने वेल विशर्स हैं, आपके लिए कितने लोग दुआ कर रहे हैं. सो विद ऑल ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू एवरीवन फॉर अलाउइंग मी टू प्ले फॉर इंडिया. एंड मैंने बहुत सारे लॉरल्स लेके आए अपने कंट्री के लिए. एंड ऑफ कोर्स इवन इफ आई एम 80 years old आई विल स्टिल से दिस टुडे, वो इंडिया जर्सी पहनने का वो जो हंगर है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगा. मैं हमेशा बोलता हूँ कि दैट हंगर ऑफ प्लेइंग फॉर इंडिया विल नेवर डाई इन मी. और शायद हर स्पोर्ट्स पीपल एग्री करेंगे कि वो कितने भी बुढ़े हो जाएंगे, वो हमेशा वो एक देश को रिप्रेजेंट करना वो हमेशा उनके जहन में रहेगा, और वो हमेशा एक फाइटिंग स्पिरिट रहेगा. सो आई थिंक येस, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना ही इटसेल्फ इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड. ओ या हम लोग जब कभी ऐसे मूवीज़ जाते हैं और वहाँ पे जब नेशनल एंथम प्ले होता है, तभी इट्स अ ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड और गूज़बम्प्स आते हैं. आई कैन ओनली इमेजिन अ स्टेडियम फिल्ड विथ योर फैंस, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल जो आपको देख रहे हैं, आपके साथ नेशनल एंथम गा रहे हैं. आई कैन ओनली इमेजिन हाउ दैट फीलिंग वुड बी. आई कैन ट्रूली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग.
So you guys also tell us about आप अपने पूरे करियर में जो आप जितना भी हॉकी खेले हो, you have had a lot of coaches, mentors, seniors. आपकी फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल रहा है आपको गाइड और कोचिंग देने में. So out of all the advices that you've got, what is that one advice that you still till date use every single time you go out there and you play or you're practicing? What is that one thing that you still use? So one of the most important advice I think from my parents, my coaches like Bawa sir, Dhanraj Pillai sir, and you know everyone, मतलब it's very common they say, मतलब जो मुझे लोगों ने जितना फैमिली ने जब सपोर्ट किया हॉकी खेलने से या मेरे कोचेस लोग ने जब मुझे सिखाया, एक ही चीज़ हमेशा जो मेरे कोच की जो मेरे दिल में मेरे दिमाग में मेरे मम्मी डैडी की और कोच की रोज रहती है कि नेवर गेट सेटिस्फाइड, कि आप कभी सेटिस्फाई मत होना कि आपका परफॉर्मेंस से. मैं आज तक मुझे कभी फैमिली में मेरे मॉम डैड ने या मेरे खुद के भाई ने हु हिमसेल्फ इज़ एन ओलंपियन, देवेंद्र वाल्मीकि हु प्लेड 2016 रियो ओलंपिक्स, इवन माई कोचेस फॉर दैट मैटर, कभी ऐसे टैप करके नहीं बोला यू बी वेल प्लेड, क्योंकि वो कहते हैं कि हमेशा जिस दिन हमने अगर बोल दिया तो यू नो यू विल बी वेरी सटल एंड आप एकदम यू नो स्टैग्नेट हो जाओगे अपने परफॉर्मेंस से. तो मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ और मैं हमेशा ये लोगों को भी कहता हूँ कि सेटिस्फाई मत होना परफॉर्मेंस से, यही सोचते रहना कि आप आज से बेहतर कल अच्छा करोगे, कल से बेहतर परसों करोगे. सो ऑलवेज कीप लर्निंग. सो मैं आई नेवर गेट सेटिस्फाइड इन वॉट एवर आई डू. मैं जब 4 गोल भी मारता हूँ या 5 गोल मारता हूँ एक मैच में तो ऐसा लगता है नहीं यार 6th वाला क्यों नहीं हुआ, 7th वाला क्यों नहीं हुआ. तो इसलिए कहता हूँ वो जो भूख है ना वो ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए कभी सेटिस्फाई नहीं होता मैं अपने परफॉर्मेंस से. डेफिनेटली हार्ड वर्क तो अपनी जगह होता ही है, लेकिन ये जो सपोर्ट फैमिली, कोचेस, मेंटर्स जो देते हैं, दैट इज़ रियली रिक्वायर्ड टू कीप यू मोटिवेटेड थ्रू आउट दिस जर्नी. और आपकी केस में जैसे आपने भी कहा, दे डेफिनेटली प्लेड अ मेजर रोल. सो आई एम रियली ग्लैड दैट दे वर एबल टू डू दैट फॉर यू. So Yuvraj, you've played for India at the highest level. You've also been part of the World Cup team. You've won numerous gold, silver, bronze medals and a lot of other laurels for the country. And also you've been a part of, the only hockey player to be part of the Fear Factor Khatron Ke Khiladi. What's next for Yuvraj Walmiki? Okay, so first thing, with all modesty and honesty, I haven't achieved anything in my life. ठीक है, the biodata says, the achievement says, but then I think there is a lot more I can get laurels and do for my country and for my country people. That's the first thing. And the second thing is, of course, you know, when you see down the line, yeah, you know, 10 years back or 7 years when I played for India, there have been a lot of you know, medals which I have got for India, whether it's Asian Champions Trophy or Champion Challenge or World Cup, or there are so many tournaments I have represented. But I feel, you know, और हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और मुझे करना है अपने देश के लिए. और आई थिंक इट्स नॉट अबाउट हॉकी, कहीं भी यू नो इफ़ कंट्री नीड्स मी, इफ़ आई कैन मेक माई कंट्री प्राउड, आई विल डेफिनेटली लव टू डू इट. And then when you talk about the first hockey player to do a reality show, of course I was super duper proud about doing it, because when Colors Channel, when they approached me doing the show, I was like nahi yaar, I have to do it because I am the first hockey player and it is an adventurous thing. It's a reality show कि आपको you know 15 माले से jump करना है. You have a snake stunts where you have 50 snakes on your body. So there have been so many various different types of stunts which I have done. So I feel ये सारी you know it is a very important fact जो मैंने ये चीज़ कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि when I was doing this Fear Factor कि I am here to represent Indian hockey, not Yuvraj Walmiki. मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में मैं कुछ भी करूँ, I have to remember, people actually should remember me as a hockey player. I want to be a hockey star and then probably something else, क्योंकि मुझे पता है ये जो मेरी पहचान है ये सिर्फ हॉकी के वजह से ही है. तो मैं अपने हॉकी को, इस खेल को बरकरार रखना चाहता हूँ. एंड यू टॉक अबाउट नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर मी, द नेक्स्ट इज़ post my hockey career, within like after 3 years or 5 years down the line, I want to start up my own hockey academy. And जो चीज़ें या गरीबी मैंने अपने ग्रोइंग एज में जब देखी थी, जब मैं जब यंगस्टर था, जब मैं हॉकी खेलना स्टार्ट किया था, I want to start up my own academy. I really want to take care of all the underprivileged children of Mumbai. मैं उनको अच्छी एजुकेशन दूँ, अच्छी कोचिंग दूँ, उनको अच्छी ट्रेनिंग दूँ, ताकि वो गलत लाइनों में नहीं जाके कोई स्पोर्ट्स खेलें और उनकी अच्छी परवरिश करूँ. तो ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है और मैं मानता हूँ और मैं 100% श्योर हूँ कि मैं जितने भी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है जिसके पास
माँ बाप नहीं है, जिसके पास फंड्स नहीं है, जो बहुत गरीब घर से, मैं उनको अच्छी हॉकी या अच्छी ट्रेनिंग या अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूँ. आई थिंक दैट्स, मैं अपने आप को वहाँ देखता हूँ आगे के 5 साल में कि मैं अपने एकेडमी के थ्रू और भी सारे युवराज वाल्मीकि, देवेंद्र वाल्मीकि, बल्कि उनसे बेहतर है, हमारे से बेहतर प्लेयर्स प्रोड्यूस करूँ हमारी एकेडमी से, जो हमारे देश के लिए जाके या अपने स्टेट के लिए, अपने सिटी के लिए जाके रिप्रेजेंट करें. Well, that's such a divine thought, to give back to the community where you live in, to give back to the people who love you so much and the sport जिससे आपको इतना कुछ मिला है. We really wish you all the best with that academy and we hope that you start off very soon so that people get full benefit out of it. And finally, before we let you go, for all the viewers who are watching this video, your fans who love and admire you so much, what is that one message you want to leave them with? So first of all, a huge thank you to the Stylish Squad team for having me on this show. It's an absolute honor and privilege to be part of this show. And to all the viewers, my fans, my friends, to all the budding hockey players, to all the budding sports person, it is very, very important to understand. Throughout the video you must have understood one thing, and it is very important, never get satisfied in your life in whatever you do, because I feel the day you think you have achieved everything, or the day you think, oh mera to sab kuch ho gaya, I think that will be a downfall of your career. So make sure that you keep learning every day, whether it's your senior, whether it's your junior, whether it's your batchmate. As I said, always respect your seniors, and always remember one thing: post your sports career, people should remember you as a good human. So पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि I want to be a good human first. मैं पहले अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, फिर एक अच्छा हॉकी प्लेयर बनना चाहता हूँ. तो कहीं ना कहीं 30-35 ईयर्स के बाद आई विल स्टॉप प्लेइंग हॉकी. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ जेंटलमैन. आप ज़िंदगी भर एक अच्छा जेंटलमैन, आप दुनिया की अच्छी सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो, आप अच्छा इंसान बन के रह सकते हो. और पर्सनालिटी, जैसे पर्सनालिटी की हम बात करते हैं कि पहले आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. आप कोई भी फील्ड में रहेंगे तो इट डजेंट मैटर विच फील्ड यू कम फ्रॉम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ योर पर्सनालिटी. सो ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा कि स्मार्ट दिखो, अच्छा दिखो, अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए. आप अच्छा प्लेयर के साथ साथ आपकी सारी अलग अलग क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए कि यू आर अ गुड ह्यूमन, यू आर अ गुड हॉकी प्लेयर, यू आर गुड लुकिंग, यू आर स्टाइलिश. So a big thank you to Stylish Squad for having me on the show. It was wonderful experience, and I will request to all my fans, my viewers, please like, share this, subscribe karo ye channel ko, and please make sure that this video goes viral. Thank you very very much for having me. So that was the star Yuvraj Valmiki. You'd have noticed throughout this video a sportsman who's achieved so much for this country, played for about 100 games, yet finds his obsessive need to be absolutely humble and modest and wanting to give back to the community. So Yuvraj, you really are a star, and this country, our fans and all of the viewers are really proud to have you. Thank you for your time with us. It was a wonderful experience talking to you. All the best.